سب سے پہلے بڑی خبر دیں، آرٹیکل 243 اور آئینی عدالت کے قیام پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اتفاق ہو گیا۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے 27ویں آئینی ترمیم کے اہم نکات بتا دیے۔ پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا، آرٹیکل 243 میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہتے۔ یہ آرٹیکل فورسز کو آئینی کردار دینے سے متعلق ہرگز نہیں، بلکہ آرمڈ فورسز کی چین آف کمانڈ سے متعلق ہے۔ رانا ثناءاللہ نے واضح کر دیا کہ سپریم کورٹ اور آئینی عدالت کا سٹیٹس ایک ہوگا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جبکہ آئینی عدالت کے چیف جج ہوں گے۔ آئینی عدالت میں ججز کی تعداد 8 کے قریب ہو سکتی ہے۔ رانا ثناءاللہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ مشاورت کے بغیر کوئی عمل نہیں ہوگا۔ سٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی بحث ہوگی۔ جن امور پر اتفاق نہ ہوا ان پر ترامیم بعد میں بھی ہوتی رہے گی۔ صبح کیبنٹ میں جو ہے یہ 27ویں ترمیم کا مسودہ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا اور کیبنٹ کی اپروول کے بعد پھر کل سینٹ میں پیش ہوگا اور پھر نیکسٹ منڈے یا ٹیوزڈے کو جو ہے وہ پھر قومی اسمبلی میں لے ہوگا۔ پیش ہونے کے بعد اسٹینڈنگ کمیٹیز کو ریفر ہوگی۔ یہی ٹائم لائن ہے، لیکن اس میں کوئی چیز جو ہے وہ پارلیمنٹ سے متعلق ڈائریکٹ تو نہیں کی جا سکتی۔ عمومی جس طرح سے کوئی ایک پروگرام بنتا ہے تو سوچ اسی طرح سے ہے۔ 243 میں ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے، یہ ایسے خواہ خوف کی سی جو ہے وہ صورتحال پیدا کی جا رہی ہے۔ 243 جو آرٹیکل ہے وہ اس سے متعلق تو ہے ہی نہیں کہ وہ کوئی آئینی رول دے جو ہے وہ آرم فورسز کو، وہ ان کی اپنی ترتیب ہے، جو چین آف کمانڈ ہے، جو یونٹی آف کمانڈ ہے، اس سے متعلق ہے۔ کوئی عمل جو ہے وہ وداؤٹ کنسنسس نہیں ہوگا۔ جس کے اوپر سب کا کنسنسس ہوگا وہ ہو جائے گا، جس کے اوپر نہیں ہوگا امینڈمنٹ جو ہے وہ بعد میں بھی ہوتی رہے گی۔ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ یہ 27ویں کے بعد جو ہے وہ امینڈمنٹ کا راستہ رک جائے گا، وہ بعد میں پھر جب کنسنسس ہوگا دیکھا جائے گا۔ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این 243 کے اوپر متفق ہیں اور آئینی عدالت پہ بھی متفق ہیں، تو یہ بات درست ہے؟ جی، دونوں پہ متفق ہیں۔ تجویز یہ بھی ہے کہ ججوں کی ریٹائرمنٹ ایج کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے لیے اس کو بڑھا دیا جائے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی درست ہے۔ یہ درست ہے، تو ریٹائرمنٹ ایج 70 سال کی جائے گی؟ جی نہیں، 68 ایئرس۔ چلے اب صبح مسودہ آ جائے گا آپ کے سامنے۔ ہاں 68 ایئرز ہے، میں 70 سال اس لیے بول دیا تھا کہ آپ بڑے فراخ دل آدمی، آپ نے کہا ہوگا ایک ہی دفعہ 70 کر دیتے ہیں۔ سر آئینی عدالت میں کتنے جج ہوں گے؟ 8 یا 8 سے زائد؟ میرا خیال ہے کہ یہ اسی کے لگ بھگ کوئی جو ہے نا مائنس پلس ہوگی۔ اور سپریم کورٹ میں کتنے ججز رہ جائیں گے؟ سپریم کورٹ کے جج کی تعداد تو میرا خیال ہے شاید 32 ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ 24 ہے۔ تو 24 پہ ہی آپ فکس کر دیں گے؟ نہیں، لیکن 24 سے خیر وہ تو یعنی جو ہے وہ تعداد پوری کی جا سکتی ہے۔ اگر 32 بھی ہو جائے تو وہ بھی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو لوڈ ہے اس کے حساب سے کم ہے۔ سپریم کورٹ سپریم ہوگی یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ سپریم ہوگی؟ نہیں، وہ ان کا سٹیٹس جو ہے وہ ایکول ہوگا۔ دونوں کا سٹیٹس ایکول ہوگا، تو پھر 2 ججز ہوں گے، ایک چیف جج آف دی کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور ایک چیف جسٹس آف دی سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ، ٹھیک ہے۔ اور ٹرانسفر کا کیا پروسیجر ہوگا سر؟ اختیار جو ہے وہ حکومت میں ڈرا کر رہی ہے اور ٹرانسفر کا اختیار جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کو دے رہی ہے۔ حکومت نے اتحادیوں کو اعتماد میں لے کر 27ویں ترمیم کا مجوزہ مسودہ فائنل کر لیا۔ کل کابینہ سے منظوری لی جائے گی، پیر یا منگل تک سینٹ میں بل پیش کیا جائے گا۔ شہباز شریف نے پیپلز پارٹی کو تمام تحفظات دور کرنے کا یقین دلایا، متحدہ کا بھی بڑا مطالبہ مان لیا۔ بلدیاتی بل کو 27ویں ترمیم میں شامل کرنے کی یقین دہانی۔ وزیراعظم سے صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کی قیادت میں وفد کی ملاقات بھی ہوئی۔ بلوچستان عوامی پارٹی نے صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستیں بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ گڈ گورننس، مفا اور بر وقت انصاف، حکومت 27ویں آئینی ترمیم منظور کرانے کے لیے تیار۔ مجوزہ مسودے کو حتمی شکل دے دی گئی، جمعے کو پہلے کابینہ اجلاس سے منظوری لی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تمام اتحادیوں کو آن بورڈ لے لیا۔ وزیر اعظم نے سب سے بڑی اتحادی پیپلز پارٹی کو تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ شہباز شریف نے MQM کا سب سے بڑا مطالبہ بھی مان لیا۔ وزیر اعظم نے بلدیاتی آئینی بل کو 27ویں ترمیم میں شامل کرنے کا یقین دلایا۔ وزیر اعظم ہاؤس کے اعلامیے کے
मुताबिक शहबाज शरीफ ने सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की सरबराही में वफ्द को मुजव्विदा तरमीम पर ब्रीफिंग दी। वजीर आजम ने वफाकी वजीर चौधरी सालिक की सरबराही में काफ लीगी वफ्द को भी एतमाद में लिया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने वजीर आजम से मुलाकात में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। मुजव्विदा आईनी तरमीम के मुसव्विदे पर वजीर कानून आजम नजीर तारड़ वफाकी काबीना को ब्रीफिंग देंगे। इत्तेहादियों के मुतालबात भी काबीना के सामने रखे जाएंगे। वफाकी काबीना से बाज़ाब्ता मंजूरी के बाद 27वीं तरमीम सेनेट में पेश की जाएगी। 27वीं आईनी तरमीम की शिकों पर गौर के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी की सरबराही फारूक नाइक को सौंपे जाने का इम्कान। कमेटी में तमाम हुकूमती और अपोजिशन जमातों को नुमाइंदगी दी जाएगी। सेनेट की मंजूरी से कायम होने वाली कमेटी तरमीमी मुसव्विदे पर शिकवार गौर के बाद अपनी रिपोर्ट पीर को ऐवान बाला में पेश करेगी, जिसके बाद सेनेट मुजव्विजा तरमीम की मंजूरी देगा। उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। को कौम का मफाद अव्वलीन तरजीह, सिर्फ इत्तेहादी ही नहीं 27वीं तरमीम के लिए अपोजिशन भी शाना बशाना खड़ी हो। हुकूमत का सबको साथ लेकर चलने का फैसला। जराए के मुताबिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें तमाम हुकूमती और अपोजिशन जमातों की नुमाइंदगी होगी। जियाले पार्लियामेंटेरियन और माहिर कानून फारूक नाइक को मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की कमान सौंपे जाने का इम्कान। कमेटी के कयाम की मंजूरी सेनेट से ली जाएगी। चेयरमैन सेनेट मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली से नाम मांगेंगे। कमेटी को 27वीं तरमीम पर गौर के लिए 2 दिन का वक्त दिया जाएगा। मुजव्विजा तरमीम पर शिकवार गौर के बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट ऐवान बाला में पीर को पेश करेगी। हुकूमत का दावा है कि अपोजिशन साथ ना भी हो तो तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर्स पूरे हैं। पीर या मंगल को सेनेट से मंजूरी के बाद उसी दिन कौमी असम्बली में भी 27वीं तरमीम को पेश कर दिया जाएगा, ताकि बहस व मुबाहिसे के बाद बुध या जुमेरात तक ऐवान ज़ीरी से भी ग्रीन सिग्नल मिल जाए। मुजव्विजा 27वीं आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी का फैसला क्या होगा? सदर आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो के ज़ेर सदारत पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास बिलावल हाउस कराची में जारी है। इस हवाले से मालूमात हासिल करते हैं नुमाइंदा समा हफीज़ बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। हफीज़, आगाह कीजिएगा, इजलास इस वक्त जारी है, कौन कौन शरीक है? जी देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की सदारत इस वक्त बिलावल हाउस में इंतहाई अहम इजलास जारी है। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी की जो कानूनी टीम गुज़िश्ता कई रोज़ से इस्लामाबाद में मौजूद रही है, उनकी जो बातचीत हुई वफाकी हुकूमत से, उस हवाले से अरकान CEC को ब्रीफिंग दी जा रही है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो 27वीं आईनी जो तरमीम है उसके जो मुख्तलिफ निकात है उस पर अरकान CEC को ब्रीफिंग दी जा रही है। आपने अपडेट किया हफीज़, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। पीपल्स पार्टी सूबाई खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डट गई है। वज़ीर आला सिंध ने 18वीं तरमीम रोल बैक करने की खबरें मन घड़त करार दे दी। मुराद अली शाह ने कहा कि 18वीं तरमीम को रोल बैक और NFC अवार्ड को वापस नहीं होने देंगे। कहा जा रहा है कि 18वीं आईनी तरमीम को रोल बैक करने की कोशिश की जा रही है, क्या वाकई ऐसा है तो पीपल्स पार्टी की इसकी हिमायत करेगी? नहीं, वन वर्ड आंसर नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, बिलावल भुट्टो ने जैसे बता दिया कि NFC में जो सूबों का शेयर है उसको जो काम हासिल है उस शिक में जो है वो तरमीम की बातें हो रही हैं, तो पीपल्स पार्टी उसकी हिमायत करेगी? नहीं। और जब आप पूछे मेरे से डिलीवरी क्यों परेशान हो रहे, यू विल फाइंड आउट। मैं खुद पूरी तरीके से वाकिफ हूं, लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि हमारी लीडरशिप, हमारी पार्टी की पोजीशन रिगार्डिंग दी 18th अमेंडमेंट, रिगार्डिंग जब हो जाएगी 27वीं तरमीम पर आपके साथ बैठूंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने नहीं क्यों कहा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं 27वीं तरमीम रात के अंधेरे में लाई जा रही है, भरपूर मुखालफत करेंगे। हम अभी तक नहीं जानते कि इस तरमीम का ड्राफ्ट क्या है। क्या हुकूमत ने खुद मुसविदा देखा है? लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा, सूबाई खुद मुख्तारी को नहीं छेड़ना चाहिए। सूबे ने जो रूल्स बना रखे हैं उनमें दखल अंदाजी की ज़रूरत नहीं। 27वीं तरमीम का है, अभी तक तो अंदाज़ा नहीं है कि उसके खदोफाल क्या है, क्या कोई चीज़ें उसमें है। हमेशा से ये हुकूमत किसी रश में होती है, रात के अंधेरे में उनसे कोई वर्शन लीक हो जाता है और फिर कहते हैं यही हमारा वर्शन है, द नेक्स्ट डे ये करते हैं, क्योंकि यहाँ तो कभी भी डिस्कशन नहीं हुई। जो वर्शन हमारे साथ शेयर हुआ था उस वक्त स्पेशल कमेटी में और जिस वक्त फिर सेनेट में प्रेजेंट हुआ उसमें फ़र्क था। सूबाई खुद मुख्तारी हल हाल में ज़रूरी होता है। सूबों ने अपने पॉलिसी बनाई है और NFC में किसी सूरत चेंज नहीं होने चाहिए। जब ऐसे लोग मिलते हैं तो कोई ना कोई बात डिस्कशन तो आ ही जाती है, मुल्क के बारे में, अपने ईमान के बारे में। आइन के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि जबर की बुनियाद पर लोगों को एक रखना अच्छी बात नहीं। 27वीं तरमीम का मुसव्विदा जब सामने आएगा तो हतमी राय देंगे।
कोई तरमीम नहीं लानी चाहिए, 27वीं तरमीम से बाहर आ जाना चाहिए। कौम को तकसीम करने का सबब बनेगा। जबर की बुनियाद पर लोगों को एक रखना ये कोई एक कौम की अलामत नहीं होती। बाहमी मोहब्बत और बाहमी एतमाद के साथ एक कौम की तरह हम चलेंगे, तभी जबकि हमारा आइन जो है वो महफूज। अभी तक तो चूँकि वो आया नहीं है, मसौदा जब आएगा तो हमारे अपनी पार्टी पे बैठेंगे। पाकिस्तान और तालिबान रजीम के मुज़ाकरात का अहम तरीन दौर जारी है। तमाम नज़रें इस्तांबुल पर हैं। पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है कि अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी रोके जाए। काबुल को 2 टूक पैगाम दे दिया गया है कि मुतालबात में कोई नरमी नहीं होगी। सरहद पार से दरअंदाजी जारी रही तो पाकिस्तान अपनी सलामती यकीनी बनाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वाज़ेह पैगाम। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि हमारा एक ही मुतालबा है कि अफगान सरजमीन से दरअंदाजी बंद हो, लेकिन अफगान तालिबान हमले बंद होने की तहरीरी ज़मानत नहीं देना चाहते। पाकिस्तान और बरतानिया की अस्करी क़यादत के दरमियान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए 2 तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की GHQ में मुलाकात। बरतानवी जनरल ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की कामयाबियों और कुर्बानियों को सराहा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल से मुलाकात में बरतानवी फ़ौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने बाहमी दिलचस्पी के मोड़ इलाकाई सलामती और 2 तरफ़ा दिफाई ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। बरतानवी चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ को चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। उन्होंने यादगार शहदा पर हाज़िरी भी दी। आगे बढ़ते हैं। टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क ने $500 अरब की हद पार करके तारीख रकम कर दी। इतनी दौलत रखने वाले दुनिया के पहले फर्द बन गए हैं। फोर्ब्स बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक एलॉन मस्क के असासों की मजमूई मालियत $510 अरब हो चुकी है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रिकॉर्ड फरोख्त और अमरीकी टैक्स क्रेडिट की मुद्दत खत्म होने से कबल बढ़ती तलब ने भी टेस्ला के शेयर्स को नई जान बख्शी। रवां साल अब तक कंपनी के शेयर्स में 14% से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। फोर्ब्स की फहरिस्त में ऑरिकल के बानी लैरी एलिसन दूसरे नंबर पर है, जिनकी मजमूई दौलत $357 अरब है।